श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 18 श्लोक 41 से 50 तक। ब्राह्मण क्षत्रिय विशा शूद्राना च परतप कर्माणि प्रविविक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे शमो दमस्तपर शौचम क्षातिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिदाक्ष्यम युद्धे चाप्यप्लायनम दानवेश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम कृषिगौरिक शिवानिजम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धि लप्ते नरः स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्दति तिच्छृणु यत प्रवृत्ति भूतानन यन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेय सर्वारम्भा हि दोषेन्दुमेनाग्निरिवावृता असिक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्मये सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथानोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। Srimad Bhagavad Gita, Chapter 18, verses from 41 to 50. The duties of the Brahmanas, the Kshatriyas and the Vaishyas, as well as of the Sudras have been assigned according to their innate modes of Prakriti, Gunas, Arjuna. Subjugation of the mind and senses, enduring hardships for the discharge of one's sacred obligations, external and internal purity, forgiving the faults of others, straightness of mind, senses and behavior, belief in the Vedas and other scriptures, God and life after death etc. Study and teaching of the Vedas and other scriptures and realization of the truth relating to God, all these constitute the natural duties of a Brahmana. Heroism, majesty, firmness, diligence and dauntlessness in battle, bestowing gifts, and lordliness, all these constitute the natural duty of a Kshatriya. Agriculture, rearing of cows and honest exchange of merchandise, these constitute the natural duty of a Vaishya, a member of the trading class, and service of the other classes is the natural duty even of a Sudra, a member of the laboring class. Keenly devoted to his own natural duty, man attains the highest perfection in the form of God realization. Here the mode of performance whereby the man engaged in his inborn duty reaches that highest consummation. From whom all beings come into being and by whom the whole universe is pervaded, by worshipping him through the performance of his own natural duties, man attains the highest perfection. Better is one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well performed, for, performing the duty ordained by his own nature, man does not incur sin. Therefore, Arjuna, one should not relinquish one's innate duty, even though it has a measure of evil, for all in the takings are beset by some evil, as is the fire covered by smoke. He whose intellect is unattached everywhere, whose thirst for enjoyment has altogether disappeared and who has subdued his mind, reaches through Sankhya Yoga, the path of knowledge, the consummation of actionlessness. Arjuna, know from me only briefly the process through which man having attained actionlessness, which is the highest consummation of Jnana Yoga, the path of knowledge, reaches Brahma. हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंत, करण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्मपालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सबके सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामिभाव, ये सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परनिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। इससे आगे के श्लोक अगले भाग में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखना जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।